Hello everyone, welcome to Course Line classes. Today we will study Geography of class 6 and that is chapter number 2. The name of the chapter is Globe, Latitudes and Longitudes. Let's start our chapter. First of all, we will understand what is the meaning of globe. Globe का क्या मतलब है? We can say globe is nothing but model of our earth. Model of our earth. ओके ये हमारे पृथ्वी का एक मॉडल है. ओके नेक्स्ट let's talk about the shape of our earth. Our earth is not a sphere, means it is not completely spherical in shape. Then what is the shape of the earth? The shape of the earth is that it is slightly flattened at the north and the south poles. नॉर्थ और साउथ पोल्स पर ये थोड़ा सा चपटा है और यह बल्ज है इन द मिडल. बीच में जो पृथ्वी का जो हमारा बीच वाला एरिया है यहाँ ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है. लेट्स सी इट इन ए पिक्चर. Here we are having picture of earth. यहाँ आप देखेंगे कि ये नॉर्थ पोल के पास ये फ्लैटेंड है और साउथ पोल्स के पास भी ये फ्लैटेंड है and it is bulge near the equator. Equator is nothing but a line which is drawn, imaginary line which is drawn between in the middle of the earth and it divides the earth in two parts. Okay, we will study this later on. ऐसा क्यों होता है? Why it is bulged at the equator and flattened at the poles? इसका कारण है there is a difference between equatorial diameter and polar diameter. Equatorial diameter and polar diameter. Can you notice the difference? Yes, the equatorial diameter, that is this one, from here to here, equatorial diameter is 12,756 kilometer, and the polar diameter, that is from here to here, it is 12,714 kilometer. Equatorial diameter is greater than the polar diameter. That's why it creates a bulge at the equator. And the polar diameter is lesser than the equatorial diameter. That's why it creates a flattening effect at the poles. Okay, there is a difference of 42 kilometers total between polar diameter and equatorial diameter. Okay, I think everyone understood. Let's move ahead. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. This is our earth, suppose, and there is one place which is located here. How we can locate this place on our earth? It is a difficult task. बहुत मुश्किल होता है कि हमें सपोज इस प्लेस को लोकेट करना हो और एक इस प्लेस को लोकेट करना हो तो हम कैसे लोकेट करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है.
एक स्फेयर मॉडल है अर्थ का, इसीलिए ये मुश्किल आती है। तो फिर क्या करना होगा? वी नीड certain points of reference and lines. Okay, we need points of reference and lines so that we can find the exact location of places on our earth. Okay, let's move ahead. Earth's axis goes from north pole to the south pole. Okay, this is our earth, this is north pole, and this is south pole. So the axis of the earth is passing from north pole to the south pole. But here is a catch. यहाँ पे एक अंतर है. That is, our earth is tilted by 23.5 degree. If this is our earth, this is the vertical reference line, then our earth is tilted by 23.5 degree. This angle is 23.5 degree. Okay, so the actual north pole is here and actual south pole is here. Okay, let's see it in the picture. This is our earth. Here it is north pole. Here we are having north pole and here we are having south pole, because it is tilted by an angle 23.5 degree. Ideally it should be here, north pole and south pole, but due to this tilt, north pole shifts from here to here and south pole from here to here. This is the thing which we have to observe. Okay, आगे चलते हैं. Earth moves from west to east direction. Suppose this is our earth. Okay, this is west direction, this is east direction. Then the movement of our earth will be from west to east. This way. I will show you it in one animated figure. See here, our earth is rotating from west to east direction. This is west and this is east, and our earth is rotating from west to east direction. Okay, sometimes this question is asked in examination about the direction of rotation of our earth. Okay, let's move ahead. Now we will talk about equator. अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया था, इक्वेटर का. इसके बारे में पढ़ते हैं. इक्वेटर is an imaginary line. It is an imaginary line running on the earth and it divides the earth in two equal parts. इक्वेटर जो है वो हमारे पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है. Okay, so we call this imaginary line as equator. Okay, it divides the earth in two halves. Northern half
is called northern hemisphere, and the southern half is called southern hemisphere. Okay, let's see it in one picture. Let's choose this picture. This is equator. This is equator. Let me choose some different color. This is equator. Okay, and it is dividing it into two halves, upper half and lower half. Upper half is northern hemisphere. This half, that is upper half, is northern hemisphere, and the lower half is southern hemisphere. Understood? So our equator divides our earth into equal halves. Okay, what is the next? All parallel circles from the equator up to the poles. From equator up to the poles are called parallels of latitudes. So क्या कहते हैं? Parallel of latitudes, or simply we say latitudes. Latitudes को हम लोग measure करते हैं in degrees. Okay, so as a reference, this is our earth and this is equator. We choose equator as our reference line for the latitudes, so we mark it as 0 degree. So equator is 0 degree in measurement, and we say it is 0 degree latitude. Okay, now what about the poles? Poles are situated at 90 degrees north, it is North Pole, and 90 degrees south, it is South Pole. Okay, तो चलिए अब हम इस फिगर पर देखते हैं लैटिट्यूड्स को। तो हमने क्या किया, हमने पृथ्वी के ऊपर बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ किया जो हमारे अर्थ को दो हाफ में बांटता है, और उस लाइन को हमने नाम दिया इक्वेटर। ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। अब हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी इसके पैरेलल बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे करते करते हम पोल्स की तरफ आगे बढ़ते गए और लाइंस ड्रॉ करते गए। सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फेयर में भी हमने पूरे साउदर्न हेमिस्फेयर को पैरेलल सर्कुलर लाइंस, इमेजिनरी लाइंस है ये सब, में बांट दिया। ओके, और हर एक लाइन का मेजरमेंट जो है वो डिग्रीज में किया जाता है। हर एक लाइन का अपना एक मेजरमेंट है। सपोज इस लाइन की बात करते हैं, इस लाइन का मेजरमेंट है 15 डिग्री। ये 15 डिग्री क्या शो करता है? 15 डिग्री बताता है कि इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ और इक्वेटर
उस पॉइंट से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ, और सेंटर से जो हमारा इक्वेटर के ऊपर जो पॉइंट है उस पर ड्रॉ करेंगे, तो जो एंगल बनाता है वो होगा इसका मेजरमेंट। तो इस केस में ये है 15 डिग्री। ओके, तो आपने देखा कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। इट इज द एंगल मेड बाय द पॉइंट्स ऑन ए पर्टिकुलर लैटिट्यूड, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। ठीक है, जैसे ये 30 डिग्री पे है ये लाइन, इसका मतलब है कि ये सेंटर के साथ जब ज्वाइन करेंगे इसको लाइक दिस, तो ये हमारे इक्वेटर के साथ 30 डिग्री बनाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनके साथ हम एन वर्ड जोड़ना पड़ता है, एन लेटर, जैसे 30 डिग्री एन। इसका मतलब हुआ कि दिस लैटिट्यूड लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और वहीं सपोज 30 डिग्री साउथ एस लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि दिस लैटिट्यूड इज लाइंग इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, ये वाला, दिस वन। ठीक है, इक्वेटर के नीचे हो गया साउदर्न, इक्वेटर के ऊपर हो गया नॉर्दर्न। तो एन और एस वर्ड, एस लेटर डिनोट करता है इसका पोजीशन इक्वेटर से नॉर्थ साइड है या साउथ साइड है। ठीक है, तो ये सारे पैरेलल सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस हो गए हमारे अर्थ के ऊपर ड्रॉ किए गए। ठीक है, ये सारे चीज हम पढ़ रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि हम अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लोकेशन को हम कैसे पता कर सकते हैं, है ना। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आवर इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, so as we move above it will be 1 degree north, 2 degree north, like this, and when we will reach at the pole then we will have 90 degree north. ओके, नॉर्थ पोल का जो लैटिट्यूड है वो कितना होगा, 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल का जो लैटिट्यूड है वो होगा, इसी तरह से हम नीचे आएंगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, करते करते जब हम पोल्स तक पहुंचेंगे, साउथ पोल तक पहुंचेंगे तो हमारा साउथ पोल होगा 90 डिग्री एस। ठीक है, तो आपने देख लिया नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन एंड साउथ पोल हो गया हमारा 90 डिग्री एस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन मोर थिंग, इक्वेटर, जो सर्किल हमारा इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज द बिगेस्ट सर्किल, ये अर्थ के चारों तरफ होगा। ओके, इक्वेटर पे जो सर्किल है वो बिगेस्ट होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करेंगे तो जो लैटिट्यूड्स होंगे, सर्कुलर लैटिट्यूड्स, वो धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। छोटे होते होते जब हम नॉर्थ पोल पहुंचेंगे तो वो दैट विल बी नथिंग बट ए पॉइंट। ओके, सर्कुलर पॉइंट। ठीक है, तो दिस पैरेलल सर्कुलर लाइंस, सर्कुलर लैटिट्यूड्स starts decreasing as we move from equator towards the poles. ठीक है, as we move away from the equator, size of parallels of the latitude decreases. यही पॉइंट था जो मैं समझाना चाह रहा था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 important parallels of latitudes.
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। लैटिट्यूड्स आपने देखा 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर कुछ 4 पर्टिकुलर टाइप के लैटिट्यूड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो हैं। पहला को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होती है लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, दूसरा जो है वो हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है नाम किस लैटिट्यूड का, 23 डिग्री हाफ डिग्री साउथ। ठीक है, ये एन है, इसका मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा ये पॉइंट। 23.5 डिग्री एस मीन्स ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। ठीक है, ओके। चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखिए, आर्कटिक सर्किल। ये किसको कहते हैं हम लोग, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और चौथा है एंटार्क्टिक सर्किल, 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग कहते हैं। अभी आप नाम और इसका जो मेजरमेंट है डिग्री, ये हमने इसको ध्यान में रखना है। अब इसे हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए फिगर पर समझेंगे। ये देखिए, यहां पर ये 0 डिग्री हमारा हो गया इक्वेटर, ये वाली लाइन इक्वेटर। ठीक है, अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे सबसे पहला था हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये डिनोट करता है लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, कैपिटल एन है तो लगाओ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा। ठीक है, दूसरा हमारा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इट इज 23.5 डिग्री साउथ। तीसरा था हमारा आर्कटिक सर्किल, और ये था 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंड चौथा था हमारा एंटार्क्टिक सर्किल, एंड इट इज नथिंग बट 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल इज 90, चेक, नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये नेम हो गया इनका स्पेशल नेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। आगे कह रहे हैं midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ठीक है, and this area therefore receives maximum heat, and we call it torrid zone. ओके, अब इसको हम अभी यहाँ पर नहीं, अब फिगर में समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसका कहना है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ, ये वाला पोर्शन के ऊपर जो सनलाइट है, सपोज मैं बताता हूँ ड्रॉ करके, ये हमारा सन है, सपोज सनलाइट जो है इसके ऊपर इस तरह से आता है, सनलाइट, सन रेज इस पे
पड़ रहा है। तो इनका कहना है कि इस एरिया में साल में कम से कम एक बार सन जो है ओवरहेड होता है। ओवरहेड मतलब बिल्कुल हमारे सर के ऊपर रहेगा। इस पे जितने भी, इस एरिया में जितने भी प्लेसेस होंगे, इस पर कभी न कभी साल में सन ओवरहेड एग्जिस्ट करेगा, सनरेज ओवरहेड रहेंगे हमारे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इस पर सन ओवरहेड रहेगा, ठीक है, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। तो ये एरिया सबसे ज्यादा हीट रिसीव करेगा। एरिया को क्या मिलेगा? मैक्सिमम हीट रिसीव्ड, सबसे ज्यादा हीट इसे रिसीव होगा। ओके, मैक्सिमम हीट रिसीव्ड इस वाले एरिया पे, इसीलिए इसका नाम कहा जाता है टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हीट रिसीव होता है, सबसे ज्यादा गर्मी हमें इसी एरिया में देखने को मिलेगा। ओके, दैट्स द नेम इज टॉरिड जोन। ओके, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कहने का मतलब ये है कि मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड दिस रीजन। बियॉन्ड दिस रीजन मतलब बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रीजन। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला नहीं, उससे अलग, जैसे कि ये वाला रीजन, ये वाला, in this region and in this region, that is beyond the region of tropic of cancer in the north and beyond the region of tropic of capricorn in the south। इस रीजन में जो है कभी भी सन ओवरहेड हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, ये कहा जा रहा है इस पॉइंट में। तो ओवरहेड हमें कहाँ मिलेगा? ओनली इन दिस रीजन, दैट इज टॉरिड जोन, ठीक है। सिर्फ टॉरिड जोन में जो है हमें सन साल में कम से कम एक बार तो जरूर ओवरहेड मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट रिसीव होता है और टॉरिड जोन कहते हैं इसको। अब आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। जो हमारा सन रेज जो है वो जब पृथ्वी पे पड़ता है तो सबसे मीन्स कहेंगे कि सबसे परपेंडिकुलर इक्वेटर पे पड़ता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, चाहे नॉर्थ या साउथ, दोनों साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, जब हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सन रेज जो होते हैं वो उसका एंगल डिक्रीज होने लगता है। एंगल ऑफ सन रेज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड इट बिकम्स स्लैंटिंग, है ना, तिरछा, जो सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी होने लगती है, ठीक है। तो यही कहा गया इस पॉइंट में। चलिए अब आगे देखते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। अब इसके बारे में, एरिया बाउंडेड बाय
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल कहाँ पर? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्किल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पर क्या होगा? मॉडरेट टेम्परेचर होगा। यदि सन की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ठीक है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर पड़ रही है हमारे सर के ऊपर सीधा, तो ज़्यादा हीट रिसीव होगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जो टॉरिड जोन में हमने देखा है। अब यदि ये किरणें तिरछी पड़ने लगेंगी धीरे धीरे, जैसे पोल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो टेम्परेचर भी उसके अनुसार इट बिकम्स, टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया that is bounded between Tropic of Cancer and Arctic Circle and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. This area has moderate temperature due to this feature of sun rays. They fall on the Earth's surface. Sun rays fall on the Earth's surface at decreased angle. That's why this area has moderate temperature, and we call it as टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहते हैं इसको हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे फिगर में समझते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय आर्कटिक सर्किल, ये आर्कटिक सर्किल हुआ, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच में जो एरिया बाउंडेड है ये हुआ, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्किल, इसके बीच जो एरिया है ये हो गया। इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस एरिया का खासियत यह है कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो कभी भी ओवरहेड नहीं पड़ती है, और पड़ती भी है तो तिरछी पड़ती है। इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा हीट रिसीव नहीं होता है, एंड दैट्स वाई द टेम्परेचर इज मॉडरेट। टेम्परेचर इज मॉडरेट हियर इन दिस एरिया, ओके। एंड this area is called temperate zone. Temperate zone, okay. And northern hemisphere we are having northern temperate zone, and in southern hemisphere we are having southern temperate zone, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया, यही इस पॉइंट में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।